اس کی ابتدا کو دیکھا تو لفظ اِنَّ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ عمل پہ زور بھی دیتا ہے اور تاکید بھی پیدا کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا فاعل اللہ کی ذات بھی ہے اور فرشتے بھی ہے. سبحان اللہ. یصلون کا فاعل اللہ بھی ہے فرشتے بھی ہے. اب یہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے اور رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتے بھی پڑھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ واحد عمل ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے فرشتے بھی شامل ہے. مومنین کو بھی حکم کیا جا رہا ہے. دیکھیں اور اگر اس پوری آیت مقدسہ کو دیکھیں تو منطقی جب اس کا استدلال کیا جاتا ہے تو اس میں زمان بھی پایا جاتا ہے, اس میں کمال بھی پایا جاتا ہے, اس میں رسول اللہ کی عظمت بھی ہے, رسول اللہ کا مقام و مرتبہ بھی ہے, اس میں رسول اللہ کی محبت بھی شامل ہے, اس میں اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل بھی شامل ہے. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ قرآن کے اعجاز کی دلیل یہ آیت مقدسہ سب سے بڑی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. بے شک اللہ وحدہ لا شریک بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات کے اوپر سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو. سبحان اللہ. جس وقت میرے نبی کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے, اے اللہ کے کریم نبی یہ ارشاد فرما دیجئے درود کیسے پڑھنا ہے. تو میرے نبی نے یہ فرمایا اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. تم نے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ آپ بھی پڑھو محمد و آل محمد کے نام. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک یا دو جو قبل میں نے عرض کیا تھا, اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایمان والو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو. الایمان نماز کو قائم کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو رمضان کے روزے رکھو جس طرح کے تم سے پہلے لوگ رکھتے تھے تاکہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ. سبحان اللہ. روزہ, حج, زکوٰۃ
بندے کا ایمان گیا، توحید و رسالت سے ہاتھ دھو بیٹھا، دین سے نکل گیا۔ یہی حکم اگر زکوٰۃ کا ہے، بندہ کہے اللہ میں نہیں، تو دے زکوٰۃ، اسلام سے گیا، ایسے ہی ہے نا۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے چل نماز پہ پڑھے، نماز پڑھے، بندہ آگے کہے چل یار جا تو پڑھ، کلمہ کفر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بلاغت کا اصول ہے، حکم دہندہ جو ہوتا ہے، حکم دہندہ، حکم کرنے والا، جو ہے بڑی خاص بات کر رہے ہیں، حکم دہندہ جو ہوتا ہے بات مشکل ہے، حکم کرنے والا جب اپنے علم میں کامل ہوتا ہے تو احکام کے اندر وہ حکم میں فلاح بھی رکھتا ہے، کامیابی بھی رکھتا ہے، عزت و مقام بھی رکھتا ہے۔ میں جملہ دہراتا ہوں، جب حکم دہندہ یعنی حکم دینے والا جب حکم کرتا ہے تو اس کے حکم میں جو احکام آتے ہیں ان احکام میں جس کو حکم کیا جاتا ہے اس کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اس کی فلاح بھی ہوتی ہے، اس کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اپنے علم میں کامل ہو، حکم دہندہ جب اپنے علم میں کامل ہو تو کائنات میں احکم الحاکمین ذات کس کی ہے؟ بولو تو صحیح، کس کی؟ اونچا بولو، اللہ کا نام لے کے ڈر لگتا ہے، میں بڑی زبردست بات کر رہا ہوں۔ جب حکم دہندہ اپنے علم میں کامل ہوتا ہے تو جو احکام وہ کرتا ہے جس کو کیے جاتے ہیں اس میں اس کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اس کی فلاح بھی ہوتی ہے، اس کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ حکم کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ حکم کر رہا ہے کہ تم بولو نماز پڑھو۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بندے کا نہیں ہے۔ حکم چاہے اللہ کا ہے چاہے نبی کا ہے، بات ایک ہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِ اللَّهَ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب بتاؤ حکم اللہ کا بھی ہو حکم نبی کا ہو، بات اچھا بولو، بات ایک ہے۔ تو حکم کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ نماز کا حکم کس نے کیا؟ نبی نے کیا۔ اب کوئی بندہ بندے کو کہتا ہے چل نماز پڑھ، وہ کہتا ہے جا تو اپنا کام کر۔ جس کو کیا جا رہا ہے، جس نے یہ بات کہی جاؤ یا تم جاؤ تم پڑھ لو، اسلام سے گیا، خارج ہو گیا۔ تو معمولی بات ہے، آگے چلیں۔ بندہ کہتا زکوٰۃ، اللہ کہے زکوٰۃ دے، بندہ کہے زکوٰۃ تو دے، تو بات کیا بنے گی؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولے بولے جی جی بولے بولے۔ بندہ اسلام سے گیا، اللہ کہتا ہے بندے حج کر جب استطاعت رکھتا ہے تم، بندہ کہتا ہے اللہ تو کر، کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا اونچا بولے۔ ایمان سے گیا، بات بڑی عجیب ہے۔ نماز کے حکم میں تو کر، بندہ گیا۔ زکوٰۃ کے حکم میں اللہ تو کر، بندہ گیا۔ حج کے حکم میں اللہ تو کر، بندہ گیا۔ یہاں عجیب بات ہے، ادھر اللہ کہتا ہے تو پڑھ، بندہ کہتا ہے تو پڑھ۔ سمجھ آئے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آیت پہ غور کرو نا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
अला नबी, अब अल्लाह कहता है तू पढ़, नीचे से तू क्या कहता है? अल्लाह कहता है तू पढ़, आप नीचे से क्या कहते हैं? वो पंजाबी में इसका तर्जुमा यही बनता है ना उर्दू में कि तू पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाह ये सल्ले जो अमर का सीगा, अल्लाह तू पढ़, तू भेज, बात अजीब नहीं है। अब जब वो कहता है तू पढ़, नीचे से तू कहता है तू पढ़, नतीजा क्या निकलता है? नमाज के लिए तू कहे गया, ज़कात के लिए तू कहे गया, हज के लिए तू कहे गया, यहाँ पे जब तू कहते हैं अल्लाह तू पढ़, अब गया नहीं, कुर्ब मिला, कुर्ब भी वो मिला जो कमाल का है, इज्जत मिली, इज्जत भी वो मिली जो कमाल की है, शान मिली, शान भी वो मिली जो कमाल की है। का अजीब मामला है। अल्लाह तू भेज, अल्लाह कुर्ब भी देता है, अल्लाह इश्क रसूल भी नसीब करता है, अल्लाह मोहब्बत रसूल भी अता करता है, अल्लाह बात सुनता भी है, सुन के फिर कहते हैं तू नबी पे दरूद भेज, तू नबी पे सलातो सलाम पढ़, तेरे काम जाने और मैं जानूं, तेरी इज्जत जाने और मैं जानूं, तेरा मकाम जाने और मैं जानूं। अजीब बात नहीं? तवज्जो है नहीं? अभी मैंने आगे चलना है, अगर आपका दिमाग हाजिर है तो है ना, अल्लाह के फजल से है ना, आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी सलाम पढ़ो नबी के ऊपर और दरूद पढ़ो। बोलो तो सही, यही हुक्म है ना। अब सुनिए हुक्म कैसा है, इससे बंदा दीन इस्लाम से निकला नहीं बल्कि दीन के अंदर आके एक मकाम पैदा करता है, एक मर्तबा पाता है, एक इज्जत पाता है, कुर्ब इलाही पाता है। कब? जब नबी पे दरूद पढ़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है? युसल्लूना अला नबी, ये अन नबी पे जो अलिफ लाम है ये ज़हनी का है, ये तारीफ का है। जब तुम इस अमल में शामिल होते हो तो फिर होता क्या है? क्योंकि अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी तो बोलो तो सही पढ़ते हैं। समझता की बड़ी जबरदस्त बात मेरे ज़हन में आ गई है, आप सुनेंगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। जब अल्लाह पढ़ता है, अब फरिश्ते पढ़ते हैं, तो ये एक ही फेल है जिसमें आप भी शामिल है अल्लाह के साथ। वो भी पढ़ रहा है, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं, बंदा भी पढ़ रहा है। अब बंदा आम तरीके से नहीं पढ़ेगा जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, पढ़ रहे पर पता कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं पर पता कुछ नहीं। यहाँ पे ये बात नहीं है। जब अल्लाह पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते पढ़ते हैं, फिर बंदा पढ़ेगा तो शर्म के साथ पढ़ेगा, जब बंदा पढ़ेगा हया के साथ पढ़ेगा, जब बंदा पढ़ेगा नबी की मोहब्बत में पढ़ेगा, जब बंदा पढ़ेगा नबी की ताज़ीम में पढ़ेगा, जब बंदा पढ़ेगा नबी की इज्जत और आजिज़ी से पढ़ेगा। क्यों? अल्लाह भी पढ़ रहा है, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। अब असूल सुनिए, अन-नबी अलन-नबी, ये अलिफ लाम का उसूल भी सुनिए। ये हदीस है, ये हदीस है, मैं पढ़ने लगा। जिस वक्त इमाम कहते हैं बंदा क्या कहता है? आमीन। बंदा क्या कहता है? आमीन। कुछ आमीन इस तरह कह रहे हैं जिस तरह आप कह रहे हैं आमीन, कुछ ऐसे कहते हैं, दिल में कहते हैं। आप किस टब्बर में है ये बताएं। पहले आप अपनी
बुखारी की 3 हदीस हैं बुलंद आवाज से जो ऊंचा कहते हैं आमीन, कोई कुफर नहीं है। ये जब मौलवी मुंह फेर के पीछे कहता है कौन है बड़ा आशिक आ जाओ ऊंची आमीना की, ये उसकी जहालत में दलालत करता है। बुखारी की हदीस है जो बुलंद आवाज से आमीन कहता है, इमाम शाफी के पैरोकार बुलंद आवाज से कहते हैं, लिहाजा मौलवी को खारिश नहीं आनी चाहिए, ये उसकी जहालत में दलालत करती है। हाँ, इससे पहले भी है 3 दफा 3 हदीसें हैं, इसके बाद 3 ऊंची हैं। जो आहिस्ता है ना, आहिस्ता, अब तवज्जो करो, मैं बात जरा खोलने लगा हूं। 3 हदीस जो है वो आहिस्ता कहने की है, ये बुखारी की हदीस है। आहिस्ता आमीन कहते हैं, जब इमाम कहता है ना वलद्दाल्लीन, बंदा दिल में क्या कहता है? आमीन। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को मानने वाले कहते हैं आमीन, और ये दिल में कहते हैं। अब दलील सुनो, नबी पाक का फरमान है, जब बंदे की इमाम जब वलद्दाल्लीन कहता है, बंदा आमीन कहता है, और उसकी आमीन जो है, अमीन जो है, फरिश्तों की आवाज से जब मुवाफिकत करती है, फरिश्तों की आवाज के साथ जब उसकी आमीन मिल जाती है, वो फिर अल्लाह उसके पहले गुनाहों को माफ कर देता है। वजह है, मैं बात आगे करने लगा हूं, बड़ी जबरदस्त बात है। जिसकी आमीन, जिसका अमल फरिश्तों के अमल से मिल जाता है, उसकी आवाज फरिश्तों की आवाज से मिल जाती है। फरिश्ते ने भी कहा आमीन, तुमने भी कहा आमीन, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, तुम्हारी बख्शिश हो गई। बात एक लम्हे की है, तवील नहीं है, ज्यादा वक्त की नहीं है, ज्यादा मुद्दत नहीं लेती। उधर कहा वलद्दाल्लीन, इधर निकला आमीन, फरिश्ते की आवाज से मुवाफिकत हो गई, अल्लाह ने माफ कर दिया। तवज्जो है, यहां पे सुनो, सिर्फ गुनाह माफ हुए, जब अमल ने फरिश्ते के अमल से मुवाफिकत की तो सिर्फ गुनाह माफ हुए। अब यहां पे क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उधर अल्लाह भी दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी नबी पे दरूद भेजते हैं। इधर बंदे को भी हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, बजमान लोगों नहीं, ऐ ईमान वालों जो मेरी वादनीयत पे यकीन रखते हो, मेरे नबी की रिसालत पे यकीन रखते हो, तुम्हारे दिल के अंदर मेरा खौफ भी है, मेरे नबी की मोहब्बत भी है। ईमान वालों तुम भी सलाम पढ़ो और तुम भी दरूद पढ़ो। अब एक नबी की बात नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। वहां पे एक लम्हा की बात है, अगर तेरा अमल फरिश्ते के अमल से मुवाफकत कर गया, तेरे नामे अमाल में बख्शिश का परवाना मिल गया। यहाँ पे बख्शिश भी होती है, बख्शिश भी होती है, क्योंकि अमल फरिश्ते का है। आवाज जब तेरी फरिश्ते की आवाज से मिल जाती है, इस बात में तो कोई शक नहीं, जिंदगी का कोई लम्हा, कोई करीना, कोई मकाम ऐसा नहीं जहाँ पे मेरे नबी पे दरूद ना पढ़ा गया हो। जब ज़मीन पे तू नबी पे दरूद पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तेरी आवाज जब फरिश्तों की आवाज से मुवाफकत करती है, तेरी बख्शिश हो जाती है। आमीन में एक लम्हा लगता है, दरूद में कम से कम आधा मिनट लगता है। एक आमीन कहना ज्यादा वक्त लगता है
काम में तो अल्लाह भी शामिल है, फिर अल्लाह का कुर्ब भी मिला, नबी की मोहब्बत भी मिली। तो जो है इंशाअल्लाह ये हुक्म सिर्फ रस्मी नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये हुक्म रस्मी नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये हुक्म रस्मी नहीं है, ये हुक्म खास है, ये हुक्म खास है। इसमें नफ्सियाती पहलू ये निकलता है, नफ्सियाती पहलू ये निकलता है। अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ोगे, तुम भी पढ़ोगे, कुर्बे की लाइन मिलेगा। अखलाकी पहलू भी है, देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, इसमें अखलाकी पहलू भी है। ये दलील है नबी पे दरूद पढ़ने की। अखलाकी पहलू है कि जब आप उस्ताद की अदब करते हैं तो उस्ताद की बात को मानते हैं, फिर जो वो हुक्म करता है उस हुक्म पे आप अमल करते हैं। मैंने पहले अर्ज किया, जब हुक्म दहिंदा अपने इल्म में कामिल होता है, जो वो हुक्म करता है उस हुक्म में फलाह भी होती है, उस हुक्म में भलाई भी होती है, उस हुक्म में कामयाबी भी होती है। अल्लाह के दिल है, उसके इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं। सुभान अल्लाह। जब उसने नबी पे दरूद पढ़ने का हुक्म किया है तो अब इस हुक्म में बंदे के लिए बका भी है, बंदे के लिए सलामती भी है, बंदे के लिए इज्जत भी है, बंदे के लिए मकाम मर्तबा भी है, बंदे के लिए दारैन में कामयाबी भी है। अखलाकी पहलू ये है, जब आप उस्ताद की बात मानते हैं, आप उसकी बात पे अमल करते हैं, जब आप नबी पे दरूद पढ़ते हैं, सुनो फिर नबी की सुन्नत पे अमल करना तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर सबसे बड़ी बात कि नबी पे दरूद पढ़ना, सबसे बड़ी बात नबी पे दरूद पढ़ना। मैंने पहले कहा ना, ये कुरान, ये आयत कुरान के एजाज की एक बहुत बड़ी दलील है और उम्मत के इत्तेहाद की बहुत बड़ी दलील है। कायनात में बंदा गोरे रंग का है, सफेद रंग का है, अमेरिका का रहने वाला है, बर्तानिया का रहने वाला है, अरब का रहने वाला है, बड़े सगीर का रहने वाला है, या दुनिया के जिस कोने में भी है, जब भी आवाज आएगी नबी पे दरूद पढ़ो, तो सुबह, दोपहर, असर, मगरिब और इशा को ये तो पढ़ेगा ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। है कि नहीं ऐसा? तो ये उम्मत की वहदानियत की एक बहुत बड़ी दलील भी है ये आयत मुक़द्दसा। तो इसको मामूली न समझो, और इस एक आयत के अंदर तौकीद भी है। तौकीद ये मंतकी लोग जानते हैं, यानी बात को पक्का करना। अल्लाह हुक्म भी करता है, बात पक्की भी करता है, बात मनवाता भी है, खुद भी करता है, फरिश्तों से भी करवाता है। इसमें तशरीह भी है, इसमें नबी का कमाल भी है, जमाल भी है, इज्जत भी है, मकाम भी है और मर्तबा भी है। सुभान अल्लाह। बात तो नहीं है ना, इसलिए तवज्जो है नहीं। इंशाअल्लाह। इसलिए जब बैठते हो ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी सारी इबादतें, मेरी माली, मेरी ज़ुबानी, मेरी जानी इबादतें अल्लाह तेरे लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आपके ऊपर सलाम हो, ऐ नबी आपके ऊपर सलाम हो, ऐ नबी आपके ऊपर सलाम हो। मेरे भाई बेबहाने से न गुजर जाया कर, जब नबी पे दरूद पढ़ता है या सलाम पढ़ता है पूरे अदब के साथ। ये तो रब ने पहले ही तुझे बना दिया। कितनी आजी से बैठे, ऐसे बैठा होता है, ऐसे बैठा होता है। कैसा नक्शा खींच के मेरे रब ने बनाया है। खड़ा है, रकू में है, सजूद में है। जब ये सारे अमल कर ले, फिर बड़े अदब से बैठा हुआ है।
सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये क्या नमाज हुई? F-16 इस तरह रावलपिंडी के ऊपर से गुजरता है, तू इस तरह पढ़ते दरूद चला जाए? नहीं मेरे भाई, बात नहीं बनती, बात नहीं बनती। बात तब बनती है क्योंकि अल्लाह भी पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं। जब अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। अब बंदे में शर्म भी उस वक्त होना वाजिब है, नबी की इज्जत करना उस वक्त वाजिब है, नबी की ताज़ीम करना बंदे पे वाजिब है। अगर ये बात नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो वो लम्हा है जो कबूलियत का लम्हा है, ये तो वो लम्हा है जो बख्शिश का लम्हा है, ये तो वो लम्हा है जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहता है ना। अब आगे भी दरूद है, मैं सलाम की बात कर रहा हूँ। जब ये कहता है ना, फिर इश्क़ मुस्तफ़ा भी नसीब हो रहा होता है, कुर्ब इलाही भी नसीब हो रहा होता है। सुभान अल्लाह। बन के सोना जे आया न होगा, करम बन के सोना जे आया न होगा, गरीबा दा दिल मुस्कुराया न होगा, आसान गुना दी धुप सारे देनी, जे आका दी रहमत दसाया न होगा। ये जितना भी फैज़ है ना, ये खास हमारे लिए है। ये जितना भी करम है ना, 1,24,000 अंबिया में से ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान अल्लाह ने रसूलुल्लाह की वजह से हमें अता फरमाया।